Hello students, today I'm going to explain the lesson A Truly Beautiful Mind of class 9. The life and achievements of the famous scientist Einstein gives us the message that a truly beautiful mind possesses not only vision but also makes sincere efforts to use this vision for the well-being of mankind. It is a biography of famous scientist Albert Einstein. The author focuses on two aspects of Einstein's personality as a scientist and as a human being. As a scientist, his marvelous discoveries created a revolution, and as a human being, he worked towards peace and democracy in the world. Let's begin. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without an indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. So, Albert Einstein जर्मन सिटी में पैदा हुए थे और जब वो पैदा हुए तो उनका सर बहुत बड़ा था उनकी बॉडी से, तो उनकी माँ को लगा कि शायद ये एक अलग तरह का एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो गया है. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister, Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" अच्छा, आइंस्टाइन जब 2 साल के हो चुके थे तब भी वो ज़्यादा कुछ खास बात नहीं करते थे, और जब उन्होंने एट लास्ट जब लर्न करा बातें करना तो हर एक वर्ड को वो 2 बार रिपीट करते थे. बहुत सारे बच्चे उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो उनके संग नहीं खेलते थे, तो उन्होंने नाम दिया ब्रदर बोरिंग, और आइंस्टाइन फिर अपने आप अकेले अकेले खेलता. और जब उसकी सिस्टर पैदा हुई तो उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि सब कुछ अच्छा है पर इसकी व्हील्स कहाँ हैं, जो एक बहुत ही अजीबोगरीब बात थी. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to later become a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. एक बार एक हेडमास्टर थे स्कूल के, उन्होंने आइंस्टाइन के फादर को बोला कि आइंस्टाइन किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होगा. फिर उसकी मम्मी ने उसको एक वायलिन बजाना सिखाने के लिए भेज दिया, और उसके बाद उसको वायलिन बजाना बहुत पसंद था और वो वायलिन बजाना सीखने के बाद काफ़ी अच्छी वायलिन बजाने लगा और वो अपने लाइफ में वायलिन हमेशा बजाते रहे. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपल. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. Einstein बुरा बच्चा नहीं था, वो ठीक था पढ़ने में. उनकी फैमिली म्यूनिक में रहती थी और वो वहीं पढ़ने लगा और वो अच्छे खासे मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में स्कोर कर लेता. पर आइंस्टाइन को स्कूल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे और हर एक टीचर से उसके आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे. और फिर जब वो 15 साल के थे वो उस स्कूल में और ना रह सके और उन्होंने वो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान and left the son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. 1 साल पहले एल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान चले गए थे और उन्होंने एल्बर्ट को अपने रिलेटिव्स के साथ म्यूनिक में रहने दिया था उसकी स्कूलिंग कंप्लीट करने के लिए. पर आइंस्टाइन को वो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था और वो चाहते थे कि वो स्विट्ज़रलैंड जाकर पढ़े और ऐसे सिटी में पढ़े जो म्यूनिक की तरह ना हो, और वो अपनी पढ़ाई अब एक दूसरी जगह पर कंटिन्यू करना चाहते थे.
Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. आइंस्टाइन को मैथमेटिक्स बहुत पसंद था और वो मैथमेटिक्स की हर एक बात उनको पसंद थी और वो फिज़िक्स में भी बहुत इंटरेस्टेड थे। और जब उन्होंने स्कूल कंप्लीट किया तो वो एक यूनिवर्सिटी जो कि स्विट्ज़रलैंड के ज़ूरिक शहर में थी, वहाँ पर वो चले गए और उनको साइंस और मैथ्स के सिवाय भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। अब वो काफ़ी बड़े हो चुके थे और बहुत ही हैंडसम लगते थे और खूब बड़ी सी उन्होंने अपने मुस्टैश रखी हुई थी। He also felt a special interest in a fellow student, Milivia Maric, whom he found to be a clever creature. The young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." जब आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी में थे तो उन्हें एक स्टूडेंट मिली जिसका नाम था मिलिवा और उन्हें वो बहुत पसंद आ गई क्योंकि वो भी आइंस्टाइन की तरह बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थी और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करने लगे। उन्हें मिलिविया एकदम एक क्लेवर गर्ल लगी और उन्हें वो लड़की इसलिए पसंद थी क्योंकि वो एक फ्रेंड थी। वो फिलिस्टीन्स जो थे, जो उसके हमेशा एनिमीज़ रहा करते थे, वो उन सब के बीच में ये लड़की उसकी फ्रेंड थी और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। काफ़ी लेटर्स उन्होंने एक्सचेंज किए, उनके लेटर्स में काफ़ी साइंटिफिक वर्ड्स हुआ करते थे और एट लास्ट आइंस्टाइन ने उसको एक बार लिखा लेटर में कि जब हम दोनों रिलेटिविटी का अपना वर्क जब प्रेजेंट करेंगे, एक कंक्लूजन पर आएगा तो हम दोनों कितने खुश होंगे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert to the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. So, in the year 1900 और 21 साल की उम्र पर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे, पर वो अनएम्प्लॉयड थे और वो नौकरी ढूंढ रहे थे। सबसे पहले वो एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह उन्होंने अपना वर्क शुरू किया और फिर प्राइवेट लेसन्स देने लगे और एट लास्ट उनको एक 1902 में उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई एक ऑफिस में जो कि बर्न में थी और यहाँ पर उसको दूसरे पीपल के इन्वेंशंस के बारे में उसको चेक करना था और एसेस करना था। और जब वो ये सब काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने डेस्क के जो ड्रॉर थी उसमें उन्होंने अपने जो इन्वेंशंस के बारे में वो सोच रहे थे और जिसके बारे में वो डेवलप कर रहे थे वो सारे इन्वेंशंस उन्होंने अपने डेस्क ड्रॉर में साथ में रखते गए और उन्होंने अपनी डेस्क ड्रॉर को द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स एक जोक बनाकर उन्होंने ये वाली बात कही। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. E is equal to mc square. तो आइंस्टाइन अपने पेपर्स पे काम करते गए और एक उनका बहुत फेमस पेपर 1905 में रिलीज़ हुआ और उसमें था आइंस्टीन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी और उन्होंने 2 क्लॉक्स पर एक्सपेरिमेंट किया, फिर वहाँ पर एक कंक्लूजन पर आए और उन्होंने अपना सबसे फेमस फॉर्मूला दिया, the formula which describes the relationship between mass and energy, that is E is equal to mc square. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him.
She was also bothered by Miller's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. जब आइंस्टाइन अपने सारे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स फिज़िक्स के सॉल्व कर रहे थे, वो चाहते थे कि वो मिलेवा से शादी कर ले। और उनकी मम्मी को मिलेवा पसंद नहीं थी, क्योंकि मिलेवा एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, और दूसरा वो हमेशा बुक्स ही पढ़ती रहती थी, और वो नहीं चाहती थी कि आइंस्टाइन को ऐसी वाइफ मिले जो खुद हमेशा बुक पढ़ती रहे। तो आइंस्टाइन ने फिर वो वेडिंग थोड़े सालों के लिए उन्होंने उसका विचार छोड़ दिया। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. January 1903 में आइंस्टाइन और मिलेवा की शादी हो गई, और अब उनके 2 बच्चे हो गए, उसके बाद 2 लड़के हो गए। और उसके बाद धीरे धीरे वो मैरिज ठीक से नहीं चल पा रही थी, क्योंकि मिलेवा को लगता कि वो अपना एम्बिशंस सब ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि वो एक हाउसवाइफ बन चुकी थी, और उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी। और एट लास्ट 1919 में उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया, और आइंस्टाइन ने फिर अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which light from fixed stars should be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. अब आइंस्टाइन का नया चैप्टर शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने डिवोर्स दे दिया था अपनी वाइफ को, एक नई लड़की से शादी कर ली थी। अब उनका फेम की तरफ उनके फुटस्टेप्स जाने लगे, और उन्होंने अपनी जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी वो पब्लिश कर दी 1915 में, और उसके साथ उन्होंने ग्रेविटी के बारे में नई बात कही। और 1919 में उन्होंने एक्लिप्स ऑफ द सन को प्रेडिक्ट किया और उसका प्रूफ दिया, और वो भी एकदम सही बताया गया। आइंस्टाइन ने काफ़ी कैलकुलेशंस करी, काफ़ी बातें ग्रेविटेशनल फील्ड्स के बारे में करी, और न्यूज़पेपर्स ने उनकी वर्क को एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन बताया। और 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स दिया गया। हर एक न्यूज़पेपर में उनकी बातें लिखी गई, और उनको काफ़ी इन्विटेशंस मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बहुत सारे उनको ऑनर्स मिल चुके थे रिगार्डिंग हिज वर्क ऑन फिज़िक्स। व्हेन द नाज़ीज़ केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. जब नाजी का रूल जर्मनी में आ चुका था, तो आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, और 5 साल बाद उन्होंने न्यूक्लियर फिजन के ऊपर एक डिस्कवरी प्रेजेंट करी, और उसकी वजह से काफ़ी लोग बहुत खुश भी हुए और काफ़ी लोग गुस्सा भी हो गए, क्योंकि उनको लगा न्यूक्लियर फिजन का थियरी यूज़ करके नाजीज जो थे वो एटॉमिक बॉम्ब बना सकेंगे। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अब सब साइंटिस्ट ने उनको कहा कि आइंस्टाइन, आपने जो न्यूक्लियर फिजन के बारे में फाइंडिंग्स करे हैं वो गलत तरह से न यूज़ हों, इसलिए आप एक लेटर अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखो। तो उन्होंने वो लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि इस तरह का बॉम्ब अगर कहीं भी ड्रॉप किया जाए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। और उन्होंने जब ये सब कहा तो अमेरिकन्स ने वही फॉर्मूला यूज़ करके एक एटॉमिक बॉम्ब बना लिया छुपके से, और फिर उस बॉम्ब को जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा और नागासाकी पर
अगस्त 1945 में ड्रॉप कर दिया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो चुका था और काफ़ी लोग उसकी वजह से मर चुके थे. आइंस्टाइन was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got even more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. जब आइंस्टाइन ने अपनी डिस्कवरी का इस तरह से यूज़ देखा तो वो बहुत सैड हो चुके थे. उनको लगा कि ये जो मैंने न्यूक्लियर फिजन की थियोरी प्रेजेंट करी है वो बहुत ही गलत तरीके से यूज़ करी गई है. इस बार उन्होंने रूज़वेल्ट को लेटर न लिखकर यूनाइटेड नेशंस को ही एक लेटर लिखा, पर उसका उनको कोई जवाब नहीं मिला और अगले 10 साल तक आइंस्टाइन अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने लगे और उन्होंने आर्म्स और एम्यूनिशन और इस तरह की चीज़ों को एंड करने के लिए कहा. उन्होंने वर्ल्ड पीस के बारे में बात करी. वो काफ़ी पॉपुलर पर्सन थे तो अपनी पॉपुलैरिटी उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी की कैंपेनिंग के लिए यूज़ करी. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. So वर्ल्ड पीस के लिए लड़ते हुए एट लास्ट इन द ईयर 1955 जब उनकी उम्र 76 ईयर्स की थी तब उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी और वो हमेशा के लिए एक ग्रेट जीनियस की तरह याद रखे गए एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन और एक साइंटिफिक जीनियस की तरह वो हमेशा हमारी यादों में बस गए. थैंक यू वन एंड ऑल. आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय.